بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल के शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां खत्म कर दे। आपने शराइत सुन लिए होंगे, उन शराइतों के ऊपर अमल करते हुए आपको आज मैं अमल बताती हूँ, वो अमल आप लाज़िम कीजिएगा। बहुत ही नायाब, बहुत ही आला किस्म का अमल है। देखिए, ये अमल जितने भी अब पेश किए गए हैं, आप लोगों की ख्वाहिश पर पेश किए गए हैं। आप चाहते थे कि जो मिनटों में हाजिरी हो, उनका अमल हमें मिले। तो ये जो तमाम अमल आपके साथ पेश किए जा रहे हैं, ये तमाम जल्दी हाजिरी करने वाले अमल हैं, इनकी कदर कीजिएगा। आज अपने अमल की तरफ। अमल की सबसे पहले अज़ामत सुन लें। ला इलाहा इल्लल्लाह का वसीला, ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला, मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरा वकीला। हाज़रात को हाजिर करो इसराफीला। इस इबारत को, इस अज़ामत को 41 से या 21 बार अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर मगरिब से पहले आपने अगरबत्तियां सुलगाकर, पाक साफ कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर आपने बैठ जाना है और अमल शुरू कर देना है। कम से कम मगरिब की अजान से आधा घंटा पहले आप बैठेंगे और हाज़राती जो अभी जो मैंने स्याही आपको बताई है, वो आपने तैयार पहले से कर लेनी है और आपने नाखून पर और या फिर हथेली पर गोल दायरा बना लेना है और पढ़कर, जो मैंने ऊपर अज़ामत बताई है, पढ़कर आप उस पर फूंक मारते रहेंगे। जब तक पढ़ाई करते रहेंगे, फूंक मारते रहेंगे, जब तक हाज़रात मुक्लिन का नज़ूल नहीं हो जाता। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अमल किसी बच्चे पर करवाया जाए, तो वही तरीका जो आपके लिए है, बच्चे के लिए है। नाबालिग बच्चा लें और उसके हाथ पर काजल लगाएं, काजल का दायरा बनाएं, उसमें हाज़राती जादुई स्याही लगाएं, उसमें थोड़ा अतर लगाएं ताकि चमक पैदा हो जाए। और फिर आप बच्चे के ऊपर 41 या 21 मरतबा जो ऊपर आपको ज़ायमत बताई गई है पढ़कर फूकें। तो फिर जैसे ही बच्चे के ऊपर हाज़रात का नुज़ूल हो, तो उसके जरिए अपने मुश्किल अमूर के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब तसल्ली बख्श मिलेगा इंशाअल्लाह। हर अमल अपनी जगह एक मुकाम रखता है। अमलों के बहुत से आदाब हैं जो पहले भी आपके साथ पेश कर दिए गए हैं। आप उन आदाब को देखकर अमल को शुरू कर सकते हैं। बेहतर तो यही है कि आप आदाब और शराइत की जो वीडियो पोस्ट की गई हैं वो लाज़िम देखें। परहेज मैंने कुछ बता दिया है शराइतों में, परहेज जलाली जमाली का भी जरूर इस्तेमाल करें। और हाज़राती स्याही कैसे बनाई जाती है, ये वीडियो के साथ भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि हाज़राती स्याही का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये अमल मुकम्मल आपके पर कामिल हो, तो आपने 11 दिन तक ये अमल करना है। इसार और ज़ुकात और इजाजत का तरीका जैसे कि शराइत आपके साथ शेयर किए गए हैं। परहेज जमाली सिर्फ आप करेंगे, जलाली परहेज नहीं करेंगे। तो 11 दिन तक आप ये अमल मगरिब से पहले करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह 1-2 दिन या 3-4 दिन के अंदर अंदर, किसी भी ताक दिन के अंदर अंदर हाज़रात मुक्लिन का नज़ूल हो जाएगा। इसी के साथ इजाजत चाहते हुए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। आने वाले बहुत ही नायाब अमल आपके साथ पेश किए जाएंगे, ये बहुत ही बाकमाल होंगे। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे